রেকর্ডিংটা একটু দেখছি স্যার, একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে, এখনই চালু করছি স্যার। देबू सर कितना टाइम लेना पड़ेगा? 1 घंटा, 1.5 घंटा? एक बोलो। 1 घंटा? नहीं नहीं, 1 घंटा ठीक है। 45 मिनट्स ऐसे ही। नमस्कार। स्टूडेंट लोग अभी छुट्टी में गया ना, इसीलिए पार्टिसिपेशन कम है। ठीक है, ओके। নমস্কার, গুড ইভিনিং অল অফ ইউ। সুস্থ দেহে সুস্থ মন, এই নিয়ে আলাপন। আজ ৮০তম পর্বে আমরা উপনীত হয়েছি আমাদের ছোট্ট এই প্রয়াসের। ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আজকের মুখ্য আলোচক প্রফেসর ডক্টর সঞ্জিত সর্দার মহোদয়, যুক্ত হয়েছেন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু মহাশয়, যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় থেকে আগত শারীরশিক্ষা অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এবং ক্রীড়াপ্রেমীবৃন্দ। সবাইকেই ৮০তম পর্বে শুভ সন্ধ্যা নমস্কার জানাই। আশা করি আপনারা সবাই कुशल आছেন। 80तम पर्व शुभारंभ करने से पहले मैं आग्रह करूंगा हमारा अध्यक्ष डॉक्टर देवप्रसाद साहू महाशय को ओपनिंग स्पीच देने के लिए। डॉक्टर देवप्रसाद साहू महाशय, नमस्कार सर। নমস্কার। সুস্থ দেহে সুস্থ মন, এই নিয়ে আলাপন। পশ্চিমবাংলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ঝাড়গ্রাম, এই ঝাড়গ্রাম জেলার এই কাবগারি সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয় 1964 এক আদিবাসী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগ মেদিনীপুর জেলার বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রাচীন শারীরশিক্ষা বিভাগ। এই শারীরশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে সুস্থ দেহে সুস্থ মন আলাপন শারীরশিক্ষার প্রয়াস এবং বিকাশের জন্য 100 লেকচার সিরিজের আমরা ব্যবস্থা করেছি, যার প্রচার প্রসার পশ্চিমবাংলা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আজকের এইটি ৮০তম পর্ব। এই ৮০তম পর্বে উপস্থিত বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি। আলাপনে আজকের দিনে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকেই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। যারা পূর্ববর্তী বক্তা ছিলেন তাদের সুসমৃদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আলাপনকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেই সকল ব্যক্তিবর্গের কেউ স্বাগত জানাচ্ছি মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। আজকে ৮০তম পর্ব। এই ৮০তম পর্বে উপস্থিত হয়েছেন ভারতবর্ষের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর সঞ্জিত সর্দার মহাশয়, যিনি প্রফেসর অ্যান্ড হেড ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, গুরু ঘাসিদাস মহাবিদ্যালয়, বিলাসপুর। মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ওনাকে বিশেষভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার আলাপনের যারা পরিচয় ওনার সম্বন্ধে বক্তব্য রাখবেন, তবুও আমি সংক্ষেপে দু এক কথা ওনার সম্পর্কে বলি। ডক্টর প্রফেসর সঞ্জীব সর্দার, হি ওয়াজ মাই ক্লাসমেট ইন LNIP গোয়ালিয়র। LNIP-তে ওনার আমাদের পিরিয়ডে হি ওয়াজ দ্য বেস্ট ফুটবলার ইন LNIP গোয়ালিয়র। আরো ওনার সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন আমাদের যারা আলাপন পরিচালক। আমি খুবই গর্বিত এবং উৎসাহিত একজন সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির HOD এবং প্রফেসরকে আমাদের মতন মহাবিদ্যালয়ের আলাপনের বক্তা হিসাবে পেয়ে আই হার্টিলি ওয়েলকাম স্যার। বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে সবাইকেই আলাপনের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যারাই ছাত্রছাত্রী যারাই আছেন
মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সুস্বাগতম জানিয়ে আলাপনের ওভার কেশব। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপকো। সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন নিউ হরাইজন অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন in 21st century 100 week virtual lecture series organized by Department of Physical Education, Seva Bharati Mahavidyalaya in association with Physical Education Foundation of India. Today's topic, Science of Sports Training. Our distinguished speaker, Professor Dr. Sanjit Sadda, Professor and Head, Department of Physical Education, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur. सर के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारा साथी डॉक्टर मृत्युंजय दास सर को आग्रह करेंगे। शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज सर। टुडे स्पीक। Thank you, Dr. Keshav Chandra Gop. It is my immense pleasure to introduce our today's 80th episode of Alapan speaker, Professor Sanjit Sardar sir. Already our respected principal sir told so many information about our today's speaker. Professor Sanjit Sarkar presently working as the head of the department and professor and Department of Physical Education, Guru Ghasidas University. He has a great and renowned expert in the field of physical education. He has did his BPed, MPed, MPhil, PhD from LNIP Gwalior. His area of interest and specialization is research, test and measurement, and he is a great footballer. He has worked more than 25 years in the field of physical education and sports science, and he has received awards and honors from Junior Research Fellowship by UGC. He has completed his research project about and developed a teaching module. He has published more than 51 research papers in reputed journals around the globe, and write one book and one book chapter. He has completed 4 awarded and 5 registered PhD research scholars, and he has played several administrative roles, responsibilities, working as a head and director, Department of Physical Education, member of Academic Council, chairman of Departmental Research Council, chairman of Board of Studies for Physical Education, a member of Board of Schools, School of Education, working as an administrative warden, a member of roster committee, member of proctoral board. He has played several roles in the various time in his work. And additional information about his sir, he have been selected through UPSC New Delhi for the post of lecturer in physical education, and joined Chandigarh administration on 20th April in 2001 in regular basis. Conducted several times in sports annual sports meets. Joined as an associate professor in Guru Ghasidas Vishwavidyalaya on 2013 through proper channel on regular basis. Now I would like to request our today's distinguished speaker for deliver his lecture about the science of sports training. The floor is yours, sir. Please, sir. Thank you so much. Just a minute. कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
Is it not visible? No. सर नॉट विजिबल। सर पहले आया था, बाद में हट गया। Okay. Is it now visible? Now is it visible, sir? हाँ सर विजिबल। सर सेकंड स्लाइड विजिबल। प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। আমরা খুব তাড়াতাড়ি ওনার বক্তব্য শুনবো। একটু টেকনিক্যাল সমস্যা হয়ে গেছে, টেকনিক্যাল সমস্যা এখনই দূর হবে। सर सेकंड स्लाइड विजिबल। Okay. थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। Again the same problem. सर ठीक है, हो गया सर, हो गया सर, प्रेजेंटेशन आ गया, सही है। Okay, okay, okay. Is it visible now? ओके सर विजिबल। Okay, so thank you very much for inviting me on this great platform. And I think this is the 80th edition of your lecture series. And I congratulate the administration of Jhargram College for organizing this such a wonderful series for the students of physical education. मैं कुछ पहले पूछना चाहता हूं कि टारगेट ऑडियंस सिर्फ बीपीएड के बच्चे हैं कि एमपीएड भी है? सर एमपीएड बहुत कम है, ज्यादातर बीपीएड है। ओके, सो today's my topic is science of effective training और science of sports training. मैं कुछ बात करूंगा, कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करूंगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सभी को पता है, इट्स बेसिक, सभी ने बीपीएड के सिलेबस में भी है, एंड देन you have in MPED syllabus also. कुछ अलग मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। आज के प्रेजेंटेशन में कुछ टॉपिक्स, कुछ जो हाईलाइट मैं करना चाहूंगा, दैट इज द मेन एनर्जी सिस्टम जो बॉडी को प्रोवाइड होता है, एंड देन व्हाट इज द ट्रेनिंग लोड, हाउ दिस एडेप्टेशन टेक्स प्लेस, aerobic threshold, that is VT1 and VT2, then how to calculate this VT1 and VT2,
what is the heart rate zone while exercise, we are doing exercise, and what is the 10% test, and what is the 10% of doing exercises. This is most important thing. So स्टार्ट मैं कर रहा हूँ. एनर्जी सिस्टम क्या है और कितने प्रकार के एनर्जी सिस्टम है. नाउ सभी को पता है कि फूड जो है दैट इज द बेसिक बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. बहुत सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट से बनता है फूड्स, लाइक फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और ये सारे जो कंपोनेंट है जब हम खाना खाते हैं and then the digestion process starts, ये deconstructed होता है अपना previous state को, and कुछ जो है उस deconstructed होने के बाद ये क्या बनता है, कुछ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कुछ फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, एंड देन कुछ एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है. कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो होता है ये शॉर्ट टर्म जो एक्सरसाइज होता है उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्लेज इनटू रोल. देन जो फैट होते हैं, फैट जो है वो लॉन्ग टर्म जो एनर्जी, लॉन्ग टर्म टाइप के जो एक्सरसाइजेस होते हैं, जो एक्सरसाइज प्रोलॉन्ग चलते हैं आधा घंटा 1 घंटा, वो यूजुअली जो होता है, जो डोमिनेंट फैक्टर जो होते हैं, डोमिनेंट सप्लायर जो होते हैं एनर्जी के लिए, वो फैट है. प्रोटीन भी होता है. प्रोटीन यूजुअली ये भी एनर्जी दे सकता है, बट प्रोटीन जो होता है ऑफन यूज्ड फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड फॉर रिपेयरिंग द वेयर एंड टियर ऑफ मसल्स. इसलिए प्रोटीन यूजुअली जो एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत कम होता है, उसका दूसरा काम होता है प्रोटीन का. द एनर्जी means what? The energy is the ability to do work. The work may be any type of work. अगर हम किसी एक पोस्चर पे बैठे हुए, that is also kind of work. हम कोई आसन पे बैठे हुए, आसन इन द सेंस अगर एक पद्मासन पे भी अगर हम बैठे हुए तो भी कहीं ना कहीं एनर्जी यूज होता है. तो कोई भी एनर्जी जो कुछ किसी भी वर्क को करने के लिए, कुछ भी स्किल को करने के लिए एनर्जी की जरूरत है. There are basically 3 types of energy system जो हम लोग पढ़ते हैं. Usually there are 3 types. ये सारे के सारे सिस्टम ये साइमल्टेनियसली काम करते, वो एक्टिविटी वाले कोई भी हो, वो आपका वॉकिंग हो, रनिंग हो, स्प्रिंटिंग हो, तीनों के तीनों जो सिस्टम है ये साइमल्टेनियसली काम करेगा, एक साथ काम करता है. ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत तेज स्प्रिंट कर रहे तो सिर्फ फॉस्फोजन सिस्टम ही काम करेगा, या बहुत स्लो आप वॉक कर रहे तो आपका सिर्फ फैट या जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है वो काम करेगा. ऐसा नहीं होता. काम तीनों एक साथ करते. द परसेंटेज ऑफ डूइंग द वर्क इज डिफरेंट. परसेंटेज आई मीन टू से द प्रायोरिटी जो होगा मीन्स डोमिनेंट कुछ फैक्टर करेगा, कोई सिस्टम करेगा, कुछ थोड़ा लेस करेगा, लेकिन इन्वॉल्वमेंट सभी का होता है. Now the first one is that is phosphogen system. This phosphogen system basically ये जो ATP PC सिस्टम हम लोग बोलते हैं, ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और CP हम लोग क्रिएटिन फॉस्फेट को CP बोलते हैं, इज ए मॉलिक्यूल दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल मूवमेंट. ये रेडीमेड सोर्सेस होता है. बॉडी किसी भी न्यूट्रिएंट्स को अल्टीमेटली ATP में कन्वर्ट होना पड़ता है या करना पड़ता है, उसके बाद ही हमको एनर्जी दे सकता है. ये जो ग्लूकोज है या दूसरा जो चीजें है डायरेक्टली एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते. ये कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जाने के बाद ही ये हमको एनर्जी देते हैं. वो प्रोसेस को हम लोग कई दफा क्रिएटिन काइनेज भी बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिन काइनेज जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में ये सारे ATP में कन्वर्ट होते हैं. और ये जो फॉस्फोजन सिस्टम होता है ये बहुत सबसे आसानी से होता है. आसानी से तो मतलब सिर्फ एक ही स्टेप में ATP में कन्वर्ट होता है. तो इसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम. सबसे कम कॉम्प्लेक्शन जो होते हैं इसमें होते हैं. बाकी सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस में उसको कई स्टेप में जाना पड़ता है, वो मैं बाद में बात करूंगा. तो फॉस्फोजन सिस्टम होता है, दिस इज द लीस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वर्किंग मसल्स.
यूजुअली क्या होता है कि ये 10 से 30 सेकंड तक के जो भी इंटेंस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, इंटेंस का मतलब होता है बहुत हाई स्पीड में हम काम कर रहे हैं, बहुत 100 मीटर स्प्रिंट है, इस टाइप के जो इंटेंसिटी के साथ जब हम काम करते, तो ये यूजुअली 10 to 30 सेकेंड्स तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं फिर से एक डिस्क्लोजर दे दूं कि ये जो 10 मैं जितने बार टाइम बोलूंगा ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10 सेकंड और 30 सेकंड सभी के लिए होगा, सभी के लिए नहीं होगा। एक वर्ल्ड क्लास एथलीट, उनके लिए हो सकता है 30 सेकंड्स तक वो सस्टेन कर जाए, लेकिन एक बिगिनर्स होगा तो हो सकता है 10 से 12 सेकंड में वो खत्म भी हो जाए। तो ये इसको इसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये आप ये थंब रूल बना के नहीं चल सकते कि सभी के लिए यही है, सभी के लिए नहीं है। एंड देन व्हाट हैपेंस कि जो बॉडी होता है हमारा, तो जो एटीपी स्टोर जो होता है मसल्स के अंदर, वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में स्टोर होता है। और क्या होता है जब कोई एक्टिविटी 30 सेकंड के ऊपर लास्ट करता है या 30 सेकंड के ऊपर इफ यू कंटिन्यू द एक्टिविटी, तो फिर एटीपी जो है वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता फॉस्फोलिपिड सिस्टम, एंड देन वो क्या करता है फिर दूसरे सिस्टम के अंदर एंटर करता है। व्हाट इज दैट सेकंड सिस्टम? दैट इज ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। नाउ दिस ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को ही लेके ये एटीपी तैयार करता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी के अंदर, वो मैंने पहले बताया कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कई सारे वो डिकंस्ट्रक्ट होके कई सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में वो कन्वर्ट होके बॉडी के अंदर रहता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट से एटीपी तैयार होता है। एक्टिविटी जो 30 सेकेंड्स से 3 मिनट तक जो भी एक्टिविटी लास्ट करता है, प्राइमरीली उनको एनर्जी इसी सिस्टम से मिलता है। What is that system? That is glycolytic system. After a few minutes of sustained activity, your body starts to rely on oxidative system to help or to meet your energy needs. Now, this oxidative system ये completely fat के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो एक्सरसाइज बहुत प्रोलॉन्ग चलते, वहां पे फिर ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम भी एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट पे एनर्जी नहीं दे पाता, इसलिए वो ऑक्सीडेटिव सिस्टम के ऊपर ये स्विच कर जाता है बॉडी। ये सिस्टम बेसिकली जो हम लोग एरोबिक और एनारोबिक की बात करते, इसका एरोबिक मेटाबॉलिज्म भी इसको आप बोल सकते हो, और ग्लाइकोलाइटिक को एनारोबिक मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, यस, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है सर। अच्छा, स्लाइड वहीं पे है क्या? जी सर। जस्ट अ मिनट। ये प्रॉब्लम ऑनलाइन में थोड़ा सा ही दिक्कत हो जाता है। सर विजिबल, आप एक बार चेंज करके देख लीजिए। विजिबल सर, ओके, एक बार चेंज कीजिए। नहीं हुआ? नहीं हुआ। 5 नंबर स्लाइड पे है, 5 स्लाइड, 5 नंबर स्लाइड। ये मुझसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है।
सर आप उसमें जाइए, प्रेजेंटेशन स्लाइड में। Present now, no? प्रेजेंट नाउ, जी सर। Entire screen कर दूं क्या? जी सर, जो हैंड रेज है उसके बाजू में जो आ गया सर। But वो move नहीं हो रहा है ना? जी सर, अभी एक बार चेंज कीजिए तो सर, एनर्जी सिस्टम दिखा रहा है। सर पीपीटी को आप व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं क्या? मैं नहीं मेल होगा। कर दूं क्या? जी सर, कर सकते हैं तो कीजिए। मैं आपको मेरा ईमेल आईडी भेज रहा हूँ। भेजो। केशव CH पे हमारी प्रॉब्लम है। सर आ गया, आ गया? मेल आ गया सर। So you present from your side, जस्ट 1 मिनट right? सर। ओके सर।
Can you make it full screen? जी सर। सर आप बताइए कितना नंबर स्लाइड में जाऊं? फुल स्क्रीन में करिए। हाँ सर, हो गया सर। बट मेरे यहाँ Visible? भी नहीं, टोटल विजिबल मेरे, सर। अच्छा, बट मेरे इसमें नहीं हो रहा है, मेरे इसमें नहीं दिख रहा है। ओके, फुल स्क्रीन दिखा रहा है। आप सबको दिखा रहे हैं? यस सर। सर आप अपना लैपटॉप में ऑन कर लीजिए और आप बताइए कितना नंबर स्लाइड पे। यस सर। ओके, सर विजिबल है टोटल, सभी को दिखाई दे रहा है सर, लेकिन आपको ओके, क्यों पता नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इधर से ही वो कर देता हूँ। ठीक है, ओके। सर एनर्जी सिस्टम स्लाइड क्या उसके बाद? ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम इसमें ओके सर। Now, should I start from first slide or glycolytic से शुरू करूँ? ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। Okay. So the first I told about phosphogen system. ये बहुत कम स्टेप में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मीन्स एटीपी में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद द सेकेंड स्टेप, अगर ये 30 सेकेंड्स के ऊपर चला जाता है तो बॉडी को फिर एनर्जी जो है सेकेंड एनर्जी सोर्सेस से मिलता है, दैट इज ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। और ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट भी, इसका भी एक लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये है कि अगर इफ इट कंटिन्यूस फॉर मोर देन 3 मिनट्स, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी उतना एनर्जी नहीं दे पाता है जो कि जितना की बॉडी को जरूरत है। सो इट स्विच द नेक्स्ट, द थर्ड वन। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बताऊं कि अगर जैसे मैं बात कर रहा था कि एरोबिक और एनारोबिक जो एनर्जी प्रोडक्शन है या मेटाबॉलिज्म है, तो जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, जब when it comes for aerobic energy system, it produce almost 34 molecules of ATP. But when it comes for anaerobic, ये एक ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से ये सिर्फ 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कन्वर्ट करता है। तो डिपेंड करता है कि सिस्टम, किस सिस्टम से एनर्जी बन रहा है। फॉस्फोजन में ये बहुत कम हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका सिस्टम जो एनर्जी सिस्टम है इट प्रोसीड टुवर्ड्स ऑक्सीडेटिव सिस्टम, ये जो प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। ये इट गोज अप टू 34 एटीपीज फॉर फ्रॉम one molecule of glucose. So if the exercise increase for more than, or exercise continues for more than 3 minutes, फिर ये क्या करता है कि ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम से कन्वर्ट होके ऑक्सीडेटिव सिस्टम में चला जाता है। एंड दिस ऑक्सीडेटिव सिस्टम इज प्योरली डिपेंडिंग अपॉन योर फैट। बॉडी में जो फैट है उसी फैट से ही ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट को भी नहीं लेता, लेकिन फैट का परसेंटेज ज्यादा होगा और कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कम होगा इन द ऑक्सीडेटिव सिस्टम। नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कहां पे चले गए? एडेप्टेशन पे। Am I audible? जी सर, ट्रेनिंग लोड नहीं, ट्रेनिंग लोड के ऊपर एक चार्ट है, देखिए उस पे आइए। जी सर। Yes. Now it shows
द टाइप ऑफ एनर्जी किससे कौन कौन से सिस्टम से हमको एनर्जी मिल रहा है. इफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी इज 100 मीटर रनिंग, then the PCR means this phosphogen system, क्रिएटिन फॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं, वो 99% 95% जो है एनर्जी फॉस्फोजन से मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस से 3% है एंड 2% फ्रॉम ऑक्सीडेटिव सिस्टम. अगर यही इवेंट 1500 का हो रहा है तो पीसीआर जो फॉस्फोजन सिस्टम है 20% आपको एनर्जी देगा, ग्लाइकोलाइसिस आपको 55% एनर्जी देगा एंड 25% फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव सिस्टम. ये जो दोनों प्रोसेस है फॉस्फोजन सिस्टम एंड ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, इट हैपेंस आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. और जो दूसरा वाला है जो जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए या ऑक्सीडेटिव सिस्टम बोलते हैं, वो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है. इसमें साइट्रिक एसिड साइकिल है जिसको क्रेब साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चेन. मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा. 4 तरह के चेन होता है, और एक आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम है. ये सारे के सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इट हैपेंस. और इसका जो परसेंटेज होता है, फॉस्फोजन 5% है, ग्लाइकोलाइसिस 5% है, एंड देन 90% जो है वो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है. पहले भी मैंने रिपीट कर चुका हूं कि मूवमेंट कैसा भी हो, कोई भी हो, एनर्जी हमको सारे सोर्सेस से मिलता है. उसका परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, बट एनर्जी हमको सारे सिस्टम से मिलेगा. नेक्स्ट प्लीज. Now talking about the training load. Now this training load usually जब हम बात करते हैं कि लोड कैसे दिया जाए या ट्रेनिंग कैसे कराया जाए और ट्रेनिंग लोड एक्चुअली होता क्या है, we usually talk about this इंटेंसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीजें हैं. मैं उसमें नहीं जाऊंगा, इंटेंसिटी, वॉल्यूम और इसमें. बेसिकली लोड एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिमांड है जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है थ्रू सम मोटर स्टिमुलस, जो किसी परफॉर्मेंस या किसी एक्टिविटी को करने के लिए हम करते हैं. एक क्यूमुलेटिव अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका आपका टोटल लोड कहलाता है, या जो वॉल्यूम हम बोलते हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. The rate at which you are performing the activity is the intensity. Intensity कई दफा आपके स्पीड से मेजर हो सकता है, कई दफा आपके हार्ट रेट से मेजर हो सकता है. और टोटल जो काम हम करते हैं उसको हम वॉल्यूम के नाम से जानते हैं. 2 तरीके से हम लोग इसको लोड को बढ़ा सकते हैं, लीनियर मेथड से, स्टेयर मेथड से. लीनियर मेथड का मतलब ये होता है कि रोज हम कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज करते जाते हैं लोड पे, और एक स्टेयर मेथड ये होता है कि जिसमें हम थोड़ा सा पॉज दे के करते हैं कि 2 दिन 4 दिन सेम लोड पे काम करते हैं, एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज हम लोग उसको इंक्रीज करते हैं. एंड यूजुअली इट इज सेड दैट द स्टेयर मेथड इज बेटर वन इन कंपेयर टू द लीनियर मेथड. स्टेयर मेथड से ही हमको लोड को इंक्रीज करना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमको ट्रेनिंग का शेड्यूल को बनाना चाहिए. नेक्स्ट पे जाइए. एडेप्टेशन पे. Now this load creates some disturbance on homeostasis. Homeostasis is the internal environment of your body. हम जब होमियोस्टेसिस की बात करते तो साथ में हम सर्कडियन रिदम की भी बात करते हैं, हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक की भी बात करते हैं. ये सारे एक इंटरनल एक एनवायरनमेंट है हमारे हर एक इंडिविजुअल के अंदर होता है. जब हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू एडजस्ट टू द नियरेस्ट सिचुएशन. जो उसको बार बार बताया जाता है, बार बार दिखाया जाता है, वो वैसे ही बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगता है. एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी दिन सवेरे 4 बजे का अलार्म आपने लगा के, आपको उठने की आदत नहीं है, बट इफ यू पुट द अलार्म एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, आप देखोगे कि 1-2 अलार्म के बाद आप उठ सकते हो.
The next day do the same thing, repeat the same thing. आप देखोगे द फर्स्ट डे अगर 3 अलार्म के बाद आपने आपका नींद टूटा है तो सेकेंड डे में आप देखोगे सिर्फ एक अलार्म में ही आप अपने आप ही उठ जाओगे। द थर्ड डे अगर आप सेम चीज रिपीट करते हो तो बिफोर द फर्स्ट अलार्म आप देखोगे अपने आप ही आपका नींद खुल जाता है। और उसके बाद चौथा और पांचवें दिन कंटिन्यू अगर ये चीज करोगे तो आपको यू नीड नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ अलार्म, आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही। कंडीशन ये रहेगा कि जो सोने जाने का टाइम है, जो आप बेड में जाते हो सोते समय, जो सोने का जो समय है उसको सेम रखिए आप। उसको अगर ऊपर नीचे करेंगे फिर प्रॉब्लम होगा। दिस इज अ काइंड ऑफ होम्योस्टासिस। तो जब हम बार बार होम्योस्टासिस को डिस्टर्ब करते हैं, द ह्यूमन बॉडी हैव ए टेंडेंसी टू एडजस्ट द नियरेस्ट पॉसिबल सिचुएशन, जो भी उसके आसपास का होगा उस पे वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है कि जब हम एक्टिविटी को जब ट्रेनिंग लोड को हम बंद करते हैं तो रिकवरी प्रोसेस शुरू होता है। रिकवरी प्रोसेस का एक जो लेवल है वो क्या होता है कि जब हम लोड लेते हैं तो एनर्जी डिप्लीट होता है, एनर्जी नीचे चला जाता है। हम जैसे रिकवरी फेज में जाते हैं तो उसको वो अपने आप ही एक टेंडेंसी होता है उसका कि वो ओवरशूट करता है, मतलब वो वापस अपने पुराने स्टेट पे जाने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में ये सिर्फ वहां पे नहीं रुकता, ये थोड़ा सा ओवरशूट कर जाता है। ओवरशूट कर जाता है मतलब जिसको हम बोलते हैं कि जितना एनर्जी हमारा लेवल जो स्टेट था उससे भी थोड़ा सा आगे चले जाता है, जिसको हम सुपर कंपनसेशन, ओवर कंपनसेशन कुछ भी नाम से जानते हैं। बट ये जो प्रोसेस है, ये जो फेज है, दिस इज प्योरली टेम्पररी फेज, और ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। This super and under compensation phase follows each other in a pendulum-like fashion. एक बार ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ग्रेजुअली ये उसी लाइन पे, जो बेस लाइन होगा, उसी बेस लाइन पे जाके ये रुक जाता है। लेकिन अगर जैसे लोड को हम रिपीट करते हैं, कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं, तो ये जो बेस लाइन है ये ऊपर चला जाता है, एंड देन वहां पे हमारा जो एडेप्टेशन है वो वहां से शुरू होता है। एंड देन वी टॉक अबाउट द एरोबिक थ्रेशोल्ड, जिसको हम वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड 1 बोलते हैं या VT1 भी बोलते हैं। एक फेज होता है अच्छा, ये जो एरोबिक थ्रेशोल्ड और एनारोबिक थ्रेशोल्ड, मैं जो भी एग्जांपल दूंगा मैं एंडोरेंस रनिंग के लिए दूंगा। मैं जो एंडोरेंस रनिंग वगैरह करते हैं या जो रनिंग के दौरान जिनका ये थ्रेशोल्ड या VT1 VT2 हम लोग मेजर कर सकते हैं, मैं वैसे वाला एग्जांपल दूंगा। मैं वेट ट्रेनिंग का या दूसरे चीजों का एग्जांपल मैं नहीं दूंगा। सो दिस इज अ फेज जहां पे उससे पहले ये बताऊं कि ब्लड बॉडी में एक लैक्टिक एसिड करके एक केमिकल होता है, जो कि ब्लड में यूजुअली एक्यूमुलेट हो जाता है जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। इसका एक बेस लाइन होता है। वो बेस लाइन क्या है? बेस लाइन है 1 to 2 मिलीमोल पर लीटर। ये जो ब्लड लैक्टिक एसिड है ये अप टू 20 मिलीमोल तक भी जा सकता है। बहुत विगरस टाइप का एक्सरसाइज अगर हम लोग करें तो ये लैक्टिक एसिड इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो सकता है कि उसका लेवल जो है अप टू 20 तक ये लेवल जा सकता है। जब हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते इंटेंसिटी के साथ मतलब स्पीड के साथ हम जब एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं तो ब्रीदिंग जो होता है वो बहुत फास्ट होने लगता है। ठीक है, यूर एक्सरसाइजिंग अबव द एरोबिक थ्रेशोल्ड। एरोबिक थ्रेशोल्ड मैं इसके बाद मैं बात करूंगा कि 2-3 जोन की हम बात करते हैं कि एरोबिक जोन कौन सा है और थ्रेशोल्ड कौन सा है। तो अगर यूजुअली अगर हम जोन को 5-6 हिस्से में डिवाइड करें, 5th तक बहुत है, इंटरनेशनल लेवल के एथलीट जो है 6 जोन तक भी जाते हैं। जोन 1 जो है वो एरोबिक जोन है, जोन 2 है जो है थ्रेशोल्ड है, जोन 3 जो है वो स्वीट स्पॉट बोलते हैं या मॉडरेट एक्सरसाइज बोलते हैं, जोन 4 जो है वो एनारोबिक थ्रेशोल्ड होता है, 5-6 जो है वो एक्सट्रीमली
सुपर टाइप के जो एथलीट्स होते हैं, बहुत वर्ल्ड क्लास एथलीट होते हैं, उन लोग 6 तक जाते हैं। यूजुअली 5 तक हम लोग भी जा सकते हैं। 5 तक मीन्स अप टू योर मैक्सिमम हार्ट रेट तक हम लोग जा सकते हैं। But beyond that level, if you are not trained, it is advised not to try that beyond this maximum heart rate level. वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कई बार, अननोन में हम लोग उसको कर लेते हैं और वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई बार न्यूज़पेपर में भी आप सुने होंगे, जिम करते करते कोलैप्स हो जाता है, एक्सरसाइज करते करते कोलैप्स हो जाता है। दिस इज द रीजन कि हमें वो लेवल नहीं पता है, वो जो रेड लाइन होता है उस रेड लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। इफ वी आर नॉट ट्रेन्ड, इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग, तो हमें नहीं जाना चाहिए। हमको उस लेवल के, उस लाइन के नीचे रहना चाहिए, उस लाइन के बिलो हमें काम करना चाहिए। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं इंटेंसिटी के साथ, जो ब्रीदिंग है हमारा, ब्रीदिंग स्पीड अप होता है। अगर ये एरोबिक थ्रेशोल्ड के ऊपर चला जाता है, तो फिर मसल जो होते हैं वो एनफ ऑक्सीजन, be in that slide, ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो होता है, जिससे मैं जो एनर्जी प्रोडक्शन की, एनर्जी सप्लाई की जो बात कर रहा था कि किससे हमको एनर्जी मिलता है, जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म है, अगर आप एरोबिक जोन में है तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म आपके लिए काम करेगा। लेकिन जैसे आप इससे ऊपर चले जाओगे तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता। देन energy, the supply of energy is to be from the next anaerobic metabolism, उससे आपको लेना पड़ेगा। Usually the endurance athlete spend more of their time, most of their time at a heart rate 0 to 10 beats below the aerobic threshold level. Aerobic threshold level exactly क्या होता है वो मैं later stage में मैं बताऊंगा। तो जो अच्छे एथलीट होते हैं, जो ट्रेन्ड एथलीट होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एरोबिक थ्रेशोल्ड के 10 बीट नीचे वो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दिस इज ए चार्ट। इसमें आपको दिख रहा है कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, 5 एंड 6। Now this zone 1 is the aerobic metabolic और aerobic zone, जिसमें इंटेंसिटी जो होता है बहुत लो होता है, इंडोलेंस टाइप ऑफ एक्टिविटीज होते हैं इसमें, राइट। जोन 2 is the threshold level. Which threshold? Aerobic threshold level. And zone 3 is the moderate और sweet spot of endurance training. इसको sweet spot भी बोलते हैं endurance training का। एंड जैसे जोन 4 में जाते, दैट इज एनारोबिक और लैक्टेट थ्रेशोल्ड, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं, इसको MLSS भी बोलते हैं, जैसे जिसको मैक्सिमम लैक्टेट स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। तो ये आपका चार्ट है। इस जोन के हिसाब से हम लोग हार्ट रेट को मेजर करके, इसी जो नीचे जो है इसके हार्ट रेट, एक नेक्स्ट में मैं दिखाऊंगा कि कितने हार्ट रेट में यूजुअली जो है आपका जोन 1 खत्म होता है, जोन 2 स्टार्ट होगा, देन जोन 3, जोन 4। नेक्स्ट वन प्लीज। केशव जी, आपको भी मैं बिजी कर दिया नहीं? नेक्स्ट। ओके, नाउ इन जोन 1 70 to 80% ऑफ द टाइम आपको जोन 1 में बिताना चाहिए। आपके टोटल वॉल्यूम का, टोटल एक्सरसाइज का, टोटल जो आपका ट्रेनिंग है उसका 70 to 80% ऑफ योर टाइम यू शुड बी इन दैट जोन नंबर 1। तभी आपका बॉडी का जो एबिलिटी है टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स वो इम्प्रूव होता है। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम जोन 1 में हम बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं और एकदम से हम स्पीड अप करने लग जाते हैं और एकदम से हम जो है कि इंटेंसिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। वो सबसे ब्लंडर होता है हमारे ट्रेनिंग का। और वो इसलिए होता है, वो क्यों होता है और उसमें मतलब नुकसान क्या होता है वो मैं बताऊंगा। कि उसमें जो होता है आपका जोन 1 इतना छोटा हो जाता है एंड देन जोन 2 बड़ा हो जाता है। जोन 2 बड़ा हो जाता है, उसके नुकसान क्या है मैं आगे बताऊंगा। It's important to note that training below your aerobic threshold isn't necessarily slow. हमेशा ये स्लो होगा इसका कोई it is not
वेरी हार्ड एंड फास्ट, लेकिन ये उन लोगों के लिए काम करता है जो बहुत बिगिनर्स होते हैं, नोवाइस होते हैं, जो फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग फॉर द एंडोरेंस ट्रेनिंग. Well-conditioned athlete can have aerobic threshold that are relatively high, up to 85% of their maximum heart rate. जो वेल कंडीशनड और वेल ट्रेन्ड जो एथलीट होते हैं, उनका जो थ्रेशोल्ड होता है, एरोबिक थ्रेशोल्ड, वो 85% उनका मैक्सिमम हार्ट रेट के 85% तक जाके वो फिर उनका एरोबिक थ्रेशोल्ड होता है, पहला थ्रेशोल्ड, जिसको VT1 बोलते हैं. नेक्स्ट पर. Now this anaerobic threshold, ये इंटेंसिटी बहुत हाई होगा, अबव द एरोबिक थ्रेशोल्ड होगा, ब्लड लैक्टिक एसिड का जो लेवल होगा वो भी बहुत इंक्रीज हो जाता है. अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट होता है तो ब्लड बॉडी जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, या मसल काम करना बंद कर देता है, या बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता. फॉर्चुनेटली क्या होता है, ब्लड में एक सब्सटेंसेस होते हैं, कई सारे एसिड्स होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं इस लैक्टिक एसिड को, जिसको बफर बोलते हैं हम लोग. जब इस बफरिंग प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में कुछ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसको कि हमें एक्सेल करना पड़ता है थ्रू आवर लंग्स, एंड दैट इज व्हाई जो ब्रीदिंग होता है ये फास्टर एंड फास्टर होता जाता है इसमें, इस जो हमारे एनारोबिक थ्रेशोल्ड प्रोसेस में. नेक्स्ट वन. If the intensity of exercise continues, the body will create so much lactic acid that body cannot buffer them fast enough. तो ये उतना जल्दी इसको ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है उस एसिड को, लैक्टिक एसिड को. उसके बाद क्या होता है कि ये जो लैक्टिक एसिड होता है, जैसे आपका इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियली ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी बढ़ता जाएगा उसी के साथ साथ. एंड देन ग्रेजुअली क्या होता है, बॉडी जो होता है वो फटीग में चले जाता है, और ड्यू टू दिस एसिड बिल्डअप एंड ग्रेजुअली वी हैव टू स्टॉप द एक्सरसाइज, हमको वो बंद करना पड़ता है. डिपेंडिंग अपॉन द फिटनेस लेवल, ये जो सस्टेन का जो पीरियड होता है इस लेवल पे, ये जो थ्रेशोल्ड लेवल के आसपास, ये 30 to 45 मिनट्स तक भी जा सकता है in the form of interval training, in the form of repetition method. Now कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका है जो हम सभी को पता है कि 220 minus your age, that will be your maximum heart rate, but there is a standard deviation of 12. 12 means ये 12 ऊपर भी जा सकता है, ये 12 नीचे भी जा सकता है. मतलब 220, if somebody's age is 40, तो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट होगा 180, लेकिन ये कहाँ तक चले जाता है, 168 और 192 तक चले जाता है, और जो कि एक बहुत बड़ा रेंज है. और जब हम 10 बीट की बात करते हैं तो 12 तो डेविएशन हो गया इसका. तो ये बहुत कारगर तो नहीं है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन आपको जरूर देगा कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कहाँ तक जा सकता है. If the person is really fit, the aerobic zone may actually be up to 85% of your maximum heart rate. अगर आप बहुत अच्छे फिट है, आप फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, तो आपका एरोबिक जोन जो होगा वो 85% आपका मैक्सिमम हार्ट रेट तक का आप जा सकते हो, लेके जा सकते हो. लेकिन अगर उसी वही इंडिविजुअल जिसका 85% जो है एरोबिक जोन में काम करता है, अगर वो 60% पे वर्क करेगा तो उसके लिए वो फायदेमंद नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं होगा उस एक्सरसाइज से. सो उसको उसी जोन के आसपास काम करना पड़ेगा, या 85 के ऊपर जाना पड़ेगा. नेक्स्ट वन. कुछ कैलकुलेट करने के लिए कुछ देयर आर सम टेक्निक. गैस एक्सचेंज टेस्ट है, इंफ्रारेड का टेस्ट होता है, हैंड हेल्ड लैक्टेट का एनालाइजर का टेस्ट है, देन हार्ट रेट मॉनिटर का टेस्ट है. आई विल टॉक अ सिंपल टेस्ट, दैट इज टॉक टेस्ट. एक टॉक टेस्ट है, इसको आप कहीं पे भी कर सकते हो, किसी के साथ भी कर सकते हो.
ये बहुत सिंपल है और आप पता कर सकते हो कि आपका एरोबिक थ्रेशोल्ड का लेवल क्या है और एनारोबिक का थ्रेशोल्ड का लेवल क्या है, मतलब कौन सी किस नंबर के कितने हार्ट बीट पे या कितने हार्ट रेट पे आपका एरोबिक थ्रेशोल्ड एक्चुअली एरोबिक थ्रेशोल्ड पे आप जा रहे हो। इसके लिए करना क्या है, 5 to 10 मिनट्स का एक वार्म अप सेशन रखिए एंड ड्यूरिंग दैट वार्म अप सेशन कीप योर हार्ट रेट बिलो 120 एंड देन ग्रेजुअली स्टार्ट, जैसे आपको लगता है कि आप तैयार है आप स्पीड अप करिए और हार्ट रेट को आप 120 के आसपास लेके जाइए। नेक्स्ट, जैसे ही हार्ट रेट 120 के आसपास पहुंचता है, स्टार्ट टॉकिंग समथिंग। टॉकिंग मीन्स आप अपना इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो, अपना घर का नाम, पिताजी का नाम, खुद का नाम और यार दोस्तों का 2-4 का नाम। कंडीशन ये होगा कि 30 से 40 सेकंड आपको कंटिन्यू बात करना है एंड अगर उससे पहले खत्म होता है रिपीट करिए। आपको कंटिन्यूअसली 30 to 40 सेकंड्स आपको बात करना है व्हाइल यू आर रनिंग, ठीक। If you are working below the aerobic threshold, you should have no problem talking for 30 seconds. अगर अगर एरोबिक थ्रेशोल्ड के नीचे है तो आपको 30 सेकेंड्स नॉर्मल बात करने में किसी भी कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। It's fine to take a deep breath between phrases, but you should not feel oxygen starved or like you want to stop talking. वो लेवल पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यू रीच दैट लेवल कि अब आपको बात करने में तकलीफ हो रहा है, आपको ऑक्सीजन की कमी होने लग रहा है, आप बहुत तेज ब्रीदिंग कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आप बात नहीं कर पा रहे हो, आपको पॉज ले लेके बात करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल के पास पहुंच गए हो आप। अनदर गुड साइन that you have reached your aerobic threshold, that nose breathing becomes snorty and difficult to sustain. आप उसको कंटिन्यू करने में आपको परेशानी होती है। नेक्स्ट वन, repeat the above steps, increasing your heart rate by 3 to 5 each stage until talking becomes difficult. जैसे ही आपको लगता है कि आप नहीं हो पा रहा है, बात करना बिल्कुल कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है, then you stop the exercise. उसके बाद आप क्या करें कि हाईएस्ट हार्ट रेट उसमें से आप निकाल लीजिए कि उस दौरान आपका हार्ट रेट हाईएस्ट कहाँ तक पहुंचा था। दैट विल बी योर एरोबिक थ्रेशोल्ड लेवल। उस लेवल को आप नोट करके रखिए। अगर एक ट्रेडमिल है आपके पास, फॉर एग्जांपल, आप ये ग्राउंड का सिचुएशन मैंने बताया, अगर आपके पास ट्रेडमिल है, कंट्रोल्ड सिचुएशन है, कंट्रोल्ड कंडीशन है और बहुत स्टेडी आप रह सकते हो, हार्ट रेट मॉनिटर भी आप लगा सकते हो या स्मार्ट वॉच के साथ आप काम कर सकते हो। आप ट्रेडमिल में बहुत आसान होता है इस चीज को मेजर करना। नाउ दिस एनारोबिक थ्रेशोल्ड बेसिकली, जो जैसे आपका ये एरोबिक थ्रेशोल्ड पता लग जाएगा तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट भी आपको पता है, तो आप देखोगे 80% to 90% के आसपास जैसे आपका हार्ट रेट पहुंचेगा, you automatically you can consider that you are in the anaerobic heart rate zone, because ये 80 से 90% के बीच में ही आपका एनारोबिक हार्ट रेट होगा। तो एरोबिक हार्ट रेट आप निकाल सकते हो, आपका एरोबिक थ्रेशोल्ड लेवल निकाल सकते हो, एनारोबिक थ्रेशोल्ड निकाल सकते हो। Now I'll talk about the heart rate zone. This heart rate zone, zone 1, exercise will be very easy, and then gradually towards easy. Aerobic condition होगा, aerobic जो ट्रेनिंग इफेक्ट होगा, that will be aerobic condition. Metabolism, aerobic और fat मतलब ऑक्सीडेटिव सिस्टम, मसल फाइबर जो होगा वो स्लो ट्विच मसल फाइबर होगा। ट्रेनिंग मेथड जो होगा कंटिन्यूअस फॉर मोर देन 30 मिनट्स और मोर देन दैट। जोन नंबर 2, हार्ट रेट जो होगा वो आपके 10% ऑफ एरोबिक थ्रेशोल्ड के आसपास रहेगा और 60 to 70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। मॉडरेट एक्सरसाइजेस होंगे। नेक्स्ट वन, एरोबिक कैपेसिटी से ही आपको एरोबिक मेटाबॉलिज्म से आपको एनर्जी मिलेगा, डोमिनेंट फैट करेगा और जो मसल फाइबर होंगे स्लो ट्विच मसल फाइबर होगा
and the exercise will be continuous for 30 to 90 minutes. थर्ड जोन पे आपका हार्ट रेट जो होगा 70 to 80% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट होगा. एक्सरसाइज जो होगा मीडियम से थोड़ा सा ऊपर होगा, बट नॉट एग्जैक्टली एग्जॉस्टिंग होगा. जो इफेक्ट होगा, ट्रेनिंग इफेक्ट एरोबिक एनारोबिक दोनों होगा. ग्लाइकोलाइटिक एंड एनारोबिक दोनों सिस्टम से आपको एनर्जी मिलेगा. स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच, कुछ फास्ट ट्विच एंड ऑल द स्लो ट्विच मसल फाइबर काम करेंगे. 10 से 20 मिनट का कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होगा आपका. Now this zone number 4, that is lactate threshold, ये above और 80 to 90% आपका टोटल मैक्सिमम हार्ट रेट का 80 to 90% पे होगा. हार्ड होगा एक्सरसाइज, बहुत इंटेंस टाइप के एक्सरसाइजेस होंगे. पूरा एरोबिक पावर का, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड इंडोरेंस, ये सारे एक्सरसाइजेस इसी कैटेगरी में आते हैं. मसल फाइबर, स्लो ट्विच मसल फाइबर एंड ऑलमोस्ट ऑल फास्ट ट्विच मसल फाइबर. 30 seconds to 8 minutes इसका जोन रहेगा. एंड जोन 5 that will be above 90% to 100%, anything above that. Now this is the low aerobic capacity. The ADS means aerobic deficiency syndrome की बात करते हैं हम लोग. आप ये देखो, जोन नंबर 1 to 2 जो है वो बहुत छोटा है. छोटा मतलब 100 to 120 बीट जो नीचे जो आपको दिख रहा होगा, 100, 120, 100, 110, 120, दिस इज द हार्ट रेट, राइट. आप देखो जो एरोबिक थ्रेशोल्ड का जो लाइन है, पहला जो ब्लू लाइन है, दैट इज अराउंड 100 to 120. तो ये बहुत छोटा सा जोन है, जोन नंबर 1 and 2. नाउ कम टू द जोन नंबर 3. ये बहुत लंबा हो गया जोन नंबर 3. 120 से 160 तक चले गया, मीन्स 40 बीट का रेंज है एक यहाँ पे. एंड देन जोन नंबर 4 to 5, ये हमेशा ही आपको 10-15 बीट के आसपास ही रहेगा. इससे ज्यादा आप लेके नहीं जा सकते, बहुत रिस्की है वो. इफ इट गोज बियॉन्ड योर 100%, वो कई दफा वो प्रॉब्लम होता है. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. आप यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली दिस इज द चार्ट ऑफ ए वेल ट्रेन्ड एथलीट. अब उनके साथ क्या होता है कि 150 तक ये लेके चला गया आपका एरोबिक कैपेसिटी. अब जोन 1 to 2 ये इतना प्रोलॉन्ग कर दिया इन्होंने कि 150 बीट तक वो बहुत आसानी से कई घंटे तक वो मेहनत कर सकता है, कई घंटे तक वो एक्सरसाइज कर सकता है. तो जब ये प्रोसेस लंबा हो जाता है, देन ये आगे का जो आपका जोन 3 and 4, 5 है, ये बहुत शॉर्ट भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपका जो डिमांड है, फिजिकल डिमांड या फिजियोलॉजिकल डिमांड है, वो आप कंप्लीट करते हो. और मैक्सिमम जो टाइम है वो आपका 80% तक, 85% तक आप एरोबिक जोन 1 में है. तो आपको जो है एक्सरसाइज करने के बाद उतना टायर्डनेस फील नहीं होगा, उतना ज्यादा रिकवरी के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा आपको, और आपका ट्रेनिंग जो है दैट विल बी इन ए राइट ट्रैक. अगर आपका ये एरोबिक जोन अगर लंबा है तो, एंड दैट शुड बी, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि 80 to 85% तक आपका मैक्सिमम हार्ट रेट वो एरोबिक जोन 1 में आपका होना चाहिए. तभी आप समझेंगे कि आपका जो बेस है, जो फाउंडेशन है ट्रेनिंग का, वो परफेक्ट है. तो उसके बाद आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज शुरू करें. नेक्स्ट. Now the 10% test is ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है. जो अभी चार्ट मैंने दिखाया, ये 10% का मतलब होता है कि जोन 1, ये जो 1-2 का जो परसेंटेज होगा और जोन 3 का जो होगा, वो उसका जो डिफरेंस होगा वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. या तो आप कह लीजिए कि 10 बिट्स से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. कई दफा ये जो वर्ल्ड क्लास एथलीट होते हैं, उनका जो स्प्रेड होता है वो 5 to 7% या ओनली 10 बिट्स का डिफरेंस होता है. जो वर्ल्ड क्लास एथलीट होते हैं उनके दोनों जो एरोबिक और एनारोबिक थ्रेशोल्ड के बीच का जो डिफरेंस है. नेक्स्ट वन प्लीज.
सो एक्चुअली जो 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 ग्राफ दिखाने का मतलब ये था कि हम लोग ट्रेनिंग में जाते ही हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज शुरू करते। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज शुरू करने का टाइम आपको तब पता लगेगा जब जब आपको लगे कि आपका जो एरोबिक जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रखा है, और उसके बाद ही आप अपना जोन 3-4 के लिए आप प्रोसीड हो सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, एरोबिक जोन जो है वो बहुत कमजोर हो जाता है, वीक रहता है, और हम लोग एकदम से आप 80% 90% हार्ट रेट के साथ हम लोग एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, एंड दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। वो बाद में फिर आपका ट्रेनिंग सारा फॉल्ट हो जाता है, आपको लगता है कि ना इंडोरेंस बढ़ रहा है, ना स्पीड बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है, एंड वो नहीं समझ में आता है। एक्चुअली दिस वाज द मेन रीजन कि जो ये एरोबिक जोन को कैसे इम्प्रूव करना है, एरोबिक जोन का कितना इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ मैं बताना चाह रहा था। और जो भी ट्रेनिंग में जाते हैं, स्पेशली जो एथलीट्स है, जो भी ट्रेनिंग जाते हैं, ये चीज़ को खास ध्यान रखें कि जो आपका बेस है, बेस इन द सेंस जो फाउंडेशन है एरोबिक जोन का, उसको आप इम्प्रूव करें, उसको इंक्रीज करें, एंड देन यू प्रोसीड ग्रेजुअली प्रोसीड टुवर्ड्स द हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जिसमें इंटरवल मेथड है, आपके रेपिटेशन मेथड है, ये सारे मेथड है, वो बाद में करें जब आपका बेस बहुत अच्छा हो, आपका फाउंडेशन बहुत बढ़िया हो। So that's all from my side. If anybody is having any doubt or anything, actually बहुत मैं भी 10-15 मिनट मैंने भी खराब कर दिया। ये टेक्निकल ग्लिच था, थोड़ा सा मेरे से नहीं बनाई। So Kesav, are you hearing me? Yes, sir. Are you here? Okay. So that's all from my side. If anybody is having any query, anything, you can ask. যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা সরাসরি আজকে মুখ্য হ্যাঁ, আলোচকের কাছে জিজ্ঞেস করতে- বাংলায় বা জিজ্ঞেস করতে। ইংরেজি বা হিন্দিতে রাখতে পারো। হ্যাঁ, বাংলাতেও জিজ্ঞেস করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আমি অ্যান্সার হিন্দিতে দিয়ে আপনি দেব। তো ভালো বাংলা বলছেন। হ্যাঁ, জানি তো, আমি পুরো জানি না। আর এটা জানতাম না, তাহলে তো স্যার বাংলায় বলতাম আচ্ছা, আপনাকে। সরি। জিজ্ঞেস করে নাও, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার আছে কি, কিছু কোনো ডাউট যদি থাকে তো। রিক গরিদে তোমরা কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে কি আজকের স্যারের যে মুখ্য বিষয় নিয়ে সায়েন্স অফ স্পোর্টস ট্রেনিং নিয়ে এতক্ষণ ধরে উনি আলোচনা করবেন? एक्चुअली थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल ज्यादा था, तो ना थोड़ा सा बीपीएड के बच्चों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि डिफिकल्ट था थोड़ा सा समझने में। फिजियोलॉजिकल थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मैं सोचा कि एमपीएड के बच्चे भी होंगे तो दे आर वेल नोन टू दिस फिजियोलॉजी, तो मैंने थोड़ा सा इसलिए इंक्लूड किया था। স্যার कोई बात नहीं স্যার। হ্যাঁ, फिर भी যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়। হ্যাঁ নমস্কার। হ্যাঁ, সবিতা দিদি ভাই বলুন, আমাদের দিদি ভাই বলুন। স্যার আপনি বলেছেন অ্যারোবিক যে মলিকুল 34 পার্সেন্টেজ রয়েছে, অ্যারোবিক মানে উইথ অক্সিজেনেটেড, আর অ্যানারোবিক বলেছেন 5 বোধহয়, মনে রাখতে পারছি না। এইটা যদি একটু সামান্য এক্সপ্লেন করেন, অ্যারোবিক অ্যান্ড অ্যানারোবিক। অ্যারোবিকটাই 34 মলিকুলস বলেছেন, স্মল মলিকুল সম্বন্ধে একটু কিছু বলুন। হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম কি ये जो যখন ये এনার্জি প্রোডাকশন হয় অ্যারোবিক और অ্যানারোবিক মেটাবলিজমে, it's more efficient than aerobic যেটা হয়, aerobic is more efficient than anaerobic। मतलब aerobic usually हम लोग एक definition जानते हैं कि aerobic means the energy produced with the help of oxygen, and anaerobic process में energy produced without the help of oxygen। Yes, sir. ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के साथ हम ये जो एरोबिक सिस्टम जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर सकता है 34 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी।
whereas जब anaerobic में without the help of oxygen हम लोग इस system में जाते हैं, तो the same molecule means one molecule of this glucose, it can convert only 4 molecule of ATP. I said this. Okay. Thank you, sir. Thank অনেক you. অনেক ধন্যবাদ সবিতা সৎপথী দিদি ভাই। স্যারের সম্পর্কে জানিয়ে রাখি, সবিতা সৎপথী দিদি ভাই 78 ইয়ার্স ওল্ড, মাস্টার অ্যাথলিট প্লেয়ার, যোগা করেন এবং 60 বছর পর্যন্ত সেবিকা হিসেবে আমাদের হসপিটালে কাজ করেছেন। বাট নট টায়ার্ড, এখন মাস্টার্স করছে, নিজেকে নিয়োজিত করেছেন এবং এই বয়সে কথা বলা যায় না, হাঁটতে পারেন না, উনি আমাদেরকে প্রেরণা দিয়ে যান। আজকেও তার থ্যাংক ইউ ম্যাডাম সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, প্রণাম করো। এবং স্যার আরেকটা জিনিস জানিয়ে রাখি, উনি হ্যাঁ ডিপ্লোমা ইন যোগা এডুকেশনে নতুন করে আবার এই বয়সে ভর্তি হবে না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম যে কেন ভর্তি হবে, আরে বাহ, যে না আমার ইচ্ছাটা, সবাই ইচ্ছা করে একটা নতুন জামা পরবো, একটা গাড়িতে বেড়াতে যাব, আমার এটা যেন ইচ্ছা যে আমি এই কোর্সটা করে নিই। তো উনি একটা কোর্স করছেন, সংস্কৃতে গ্রাজুয়েশন করছেন, সংস্কৃতে এই বয়সে সংস্কৃতে গ্রাজুয়েশন করছেন, আবার এটা ইচ্ছা হয়েছে যে আমি ডিপ্লোমা ইন যোগা এডুকেশন করব। খুব ভালো, খুব ভালো। অনেক অনেক ধন্যবাদ দিদি ভাই। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা সরাসরি আজকের মুখ্য আলোচনার কাছে রাখতে পারো। আমরা এখন অন্তিম চরণে পৌঁছে গেছি, ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বিষয়। অনেক অনেক স্যারকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই, মানে স্যারকে ধন্যবাদ যেমন হচ্ছে যেন ডিউ রাখবো, কারণ যতক্ষণ না আমরা সশরীরে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে একবার পাচ্ছি স্যারকে, ততক্ষণ আমাদের মন ভরছে না। তবুও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেই হবে। ৮০তম পর্বের মুখ্য আলোচক প্রফেসর ডক্টর সঞ্জিত সর্দার মহাশয় তার অমূল্য সময় ব্যয় করে আজকের আমাদের সায়েন্স অফ স্পোর্টস ট্রেনিং এই বিষয়টির উপর দীর্ঘায়িতভাবে আলোচনা করে চললেন। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তথা শারীরশিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে, তথা আমাদের এই যে ছোট্ট প্রয়াস সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপনের পক্ষ থেকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আজকে যারা বিভিন্ন অধ্যাপক মণ্ডলী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের উপস্থিত ছিলেন তথা শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ, সবাইকে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের শারীরশিক্ষা বিষয়ের তথা ক্রীড়া জ্ঞান প্রেমী সবাইকেই যারা আজকের এই প্ল্যাটফর্মে ৮০তম পর্বে উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জানাই আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়কে, যিনি প্রতিটা এপিসোডে সশরীরে উপস্থিত থেকে আমাদের স্বাগত ভাষণ দেন। যত ব্যস্ততাই হোক না কেন, যেখানেই থাকুন না কেন, এটা আমাদের কাছে কম পাওনা নয় এবং যার ফলস্বরূপ আমরা এই ৮০তম পর্বে উপনীত হতে পেরেছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো প্রথম পর্ব থেকে ৭৯তম পর্বের সমস্ত মুখ্য আলোচকগণকে, যারা ওনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াসে সাড়া দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে একটির পর একটি এপিসোড আমরা বিনা পয়সায় এইভাবে করে চলে যেতে পেরেছি। স্যারকে অগ্রিম নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম, স্যার আপনি একবার সশরীরে উপস্থিত থেকে আমাদের ছাত্রছাত্রীকে আরো সমৃদ্ধ করবেন, আমাদেরকেও সমৃদ্ধ করবেন, এই আশায় এই অপেক্ষায় রইলাম। সবাইকে আবার যথাযোগ্য স্থানে শ্রদ্ধা প্রণাম ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ৮০তম পর্ব শেষ করার পূর্বে স্যারের আজকের প্রোগ্রামটি কেমন লাগলো সেই সম্পর্কে দু চার কথা বলার পর আমাদের এই প্রোগ্রামটি শেষ হবে। স্যার যদি আপনি বলেন যে আমাদের এই প্রোগ্রামটি কেমন লেগেছে আপনার। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल से कंट्री में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज भी है जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन और इस टाइप के कोर्सेज चलते हैं। कई सारे डिप्लोमा है, कई सारे कुछ है, बट आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ एनर्जी और सच टाइप ऑफ एंथुजियाज्म यू गाइज हैविंग। और ये जो एक सीरीज चल रहा है, मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना लंबा समय से और इतने लोगों को इन्होंने इकट्ठा करके, और यू नो हर हफ्ते का एक आई थिंक एवरी वीक देयर इज ए टॉपिक, नो
और एवरी मंथ? एवरी गुरुवार को, हाँ, हर एवरी वीक, हाँ हर गुरुवार। तो ये मैं यू नो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन और आई हैव नो वर्ड्स टू यू नो से थैंक्स टू यू गाइस दैट आप लोग इतना आप लोगों को पता नहीं कि आप इस प्रोफेशन के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप लोग। हम लोग एक जरिया है, कभी हम लोगों को 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, जो हमको समझ में आता है हम बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे-अच्छे वक्ता है, अच्छे-अच्छे यू नो एक्सपर्ट्स है। मुझे पता है कि उन लोगों ने भी लेक्चर दिया है यहाँ पे और उससे ऑब्वियसली है कि एक रीजन जो है वो एनरिच हो रहा है यू नो फॉर दिस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के नॉलेज से। मेरा हार्टफेल्ट थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रखा एंड आई थिंक यू विल कंटिन्यू टिल 100th एपिसोड आई थिंक 100 এপিসোড পর্যন্ত চলবে বোধহয়। হ্যাঁ, তো তো এটা মারাত্মক জিনিস, মানে कल्पनार बाहर। आई कैन नॉट इमेजिन कि इतना लंबा समय तक और आप लोग इसको सस्टेन कर रहे हो और सक्सेसफुली आप लोगों ने इतना 80th एडिशन आप लोगों ने किया है, 20 और बाकी है। सैल्यूट टू यू पीपल, योर प्रिंसिपल, योर एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, योर हायर एजुकेशन, एवरीवन। ये दिस इज नॉट वेरी इजी टास्क जो कि आप लोग लेके चल रहे हो। आप इन जनरल आप प्रोफेशन को मदद कर रहे हो, आप सिर्फ अपने विश्वविद्यालय को अपने अपने महाविद्यालय को मदद नहीं कर रहे हो, आप इन जनरल इस प्रोफेशन को मदद कर रहे हो आप लोग। हैट्स ऑफ टू यू, वेरी नाइस जॉब and once again thanks for inviting me in such a platform. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আপনাদের মতন শারীর শিক্ষাবিদ তথা শারীর শিক্ষা এবং ক্রীড়া বিজ্ঞান জগতের আপনারা নক্ষত্র। আপনারা এরকম ছোট্ট একটি মহাবিদ্যালয় যেখানে জঙ্গলে ঘেরা, চারদিকে 10 বছর আগে মাওয়িস্টে ভর্তি ছিল, সেই রকম একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠানে ডাকে সাড়া দিয়ে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যেভাবে আপনারা ভার্চুয়াল মোডে আসছেন এবং আগামী দিনে আমরা যে স্বপ্নটা নিয়েছি জানি না সেটা আমাদের কতটা বাস্তব করতে পারবো। আপনাদের সবাইকে সশরীরে 100 এপিসোডে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি এবং আপনারা সবাই সেই সময় আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ে আসেন, আমরা খুবই উপকৃত হব। স্যার ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আবার সশরীরে দেখা হবে এবং ভার্চুয়াল মোডে দেখা হবে আগামী 81তম পর্বে, আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 7টার সময়। শুভরাত্রি। Thank you very much. Should I leave now? ওকে স্যার। Thank you very much.